So a warm welcome to all the audience, all the viewers who have joined us for our live session today. Today we are going to speak about mobile addiction and healthy lifestyle in children especially. जैसे कोविड जब से स्टार्ट हुआ, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हुई, बच्चों का पूरा टाइम जो एक टाइम होता था जब हम बच्चों को मना करते थे कि आपको नहीं मोबाइल यूज करना है, आपको स्क्रीन नहीं यूज करना है, यहाँ पे उल्टा हुआ कि हम पूरी तरीके से मोबाइल पे और स्क्रीन पे ही एडिक्टेड होते चले गए। तो बच्चों के लिए कितना टफ हो गया और इस केस में इस न्यू नॉर्मल के साथ में उनको एक हेल्दी लाइफस्टाइल हम कैसे दे सकते हैं, ये बताने के लिए आज हमारे साथ में है सत्यधर द्विवेदी, हु इज असिस्टेंट प्रोफेसर at Department of Clinical Psychology, IMHH Agra. There is one more point I would like to wish. He is also my very good friend and my classmate during my MPhil. So हम दोनों की ट्रेनिंग साथ में ही हुई है और बहुत अच्छा लगता है जब एक दोस्त आपके लिए एज अ गेस्ट स्पीकर आपको ज्वाइन करता है। तो थैंक यू सो मच सत्या once again. Thank you. And I Thank you. would like to give a brief profile about Satyadhar. So he has completed his MPhil in 2011 from PGI BMS Raipur. He has been awarded as Best Clinical Psychology in 2017 by ITERA, and he has project experience as co-principal investigator for motivational enhancement therapy to reduce default among TB patients having alcohol addiction under programming setting, a randomized control trial. There are so many workshops and so many conferences in his account. He has almost more than 10 or 15 research papers in international and national journals and many conferences. So we are having you as a guest speaker today. Thank you so much, sir, for joining us today. We request all the participants to keep yourself on mute, and we would like to have your questions and your queries at the end of the session. So please, sir, you can start now. Thank you, Sweta, for brief introduction. And first, I have to congratulate Sweta what she is doing for making people to be aware for what are the issues can be dealt by the clinical psychologist and how we can make basically the use of clinical psychologists to be a for the more to use the preventive strategies rather than going for the final interventions. Like we are working in the tertiary care centers in Institute of Mental Health Hospital, Agra. Okay, first I have to congratulate Sweta what she is doing, making some time from for his busy schedule to work on such issues. जैसे कि हम लोग जानते हैं कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मेन रोल हम लोग को प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे अधिक काम करना चाहिए जिससे कि वी कैन स्टॉप the prevalence of mental illness in general population. But today what I'm going to talk about, second is very important day today is the 2nd October, Gandhi Jayanti. So we have to be okay, the be aware, more discipline and all about everyone is talking about. So once I'm going to talk about children phone, mobile phone addiction in children and promotion of healthy lifestyle in those children. So uh, once we start talking about the children, so it will become very important to talk about parents. And let's start with my slide. First, I will talk about a little bit about the statistic about the how much the phone addiction is harming mental health of the individual. And in some of the cases, I will share with you people. But my practical experience with the phone addiction and nowadays I'm seeing most parents are coming with the behavioral problem once they are going and taking detailed history of such those cases. The finding is there is behind those behavioral problem there is the phone addiction because earlier the child was using spending most of the time in the in his screen. Now the parents realize he is is using more time and suddenly they took away his phone from him. So now he's showing some behavioral problem. There's a lot of cases nowadays is increasing because the number of phones is increasing in India. Almost around 70% of Indians are using phones. Around 56% of the children is using phone, and most important, they are using data also and consuming all the data what they are getting from the mobile phone companies. It's very important for us to understand those aspects and how those things are harming their mental health. There is some one of the surveys the published in Hindustan Times this year.
In fact, uh, is saying around 30% children is saying about कि they can't live without their phones. We can assume that 39% children having the phone addiction, they are promptly saying कि मैं बिना फोन के रह ही नहीं सकता, मुझे फोन की बहुत अधिक जरूरत है. They are very obsessed about those phones, to carry their phones. And और सब मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे जो बेसिक प्रॉब्लम है कि बहुत ही कम एज में हमारे यहाँ बच्चे जो है ना वो फ़ोन को यूज़ करना शुरू कर दे रहे हैं. 7 year age तक 53% of children is using phones. It's very problematic for us, and that directly indicating about the way the parenting is going on nowadays in India. We have to the educate parents. Education is the most important factor to for preventing the preventing the harmful use of these technologies. The education can reduce the prevalence of the mental and behavioral issues is going with the children. Behavioral issues is going with the elderly people also, because the children is going to be further they are going to be adults. And by the age of 11, 90% children have their own devices. It's very very sensitive issue. The parents have to look over this issue, because the 90%, because the age of 11 child's brains are not enough mature, can't understand what is right and what is wrong. क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या उसे फोन पे देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कौन सा उसे गेम खेलना चाहिए, किस तरह का गेम उसे नहीं खेलना चाहिए. ठीक है. देयर इज लॉट ऑफ पीयर प्रेशर्स आल्सो टू कैरी फोन, बिकॉज दूसरा अगर स्कूल में बच्चा दूसरा कोई बच्चा फोन लेके आ रहा है तो दूसरा बच्चा भी डिमांड करने लगता है कि नहीं मुझे वैसा ही फोन चाहिए. तो ये जो समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं नंबर ऑफ फोन यूज के कारण बच्चों में, इसके कारण बच्चों में क्या है कि डेवलपमेंटल डिले की बहुत सारी समस्याएं आई हैं. मैंने कुछ पर्सनल केसेस देखे हैं जहाँ पे कि नॉर्मल डेवलपमेंट के बाद बच्चों को फोन दिया गया and they started seeing some videos on YouTube. Okay, they started playing some games and the phones. Parents become very happy कि मेरा बच्चा ना YouTube बहुत आसानी से खोल लेता है. वो ना गेम को बहुत जल्दी से खोल लेता है. उसको बस कोई भी फोन दीजिए वो तुरंत गेम के पास पहुंच जाता है. वो पहचान लेता है कि कौन सा ऐप है फोन में गेम का, और वो गेमिंग ऐप को खोल लेता है. लेकिन suddenly they realize at the same time कि there is जो बच्चा बोलना शुरू कर दिया था, he was very communicative, he was very outgoing, now he is gradually becoming shy. वो धीरे-धीरे बात करना बंद कर रहा है, लोगों के साथ बैठता नहीं है. वो जैसे ही फोन पेरेंट्स आते हैं, पापा से फोन लेता है और लेकर के किनारे चला जाता है और गेम खेलना शुरू कर देता है. सेकेंड इश्यूज जो भी उनके पहले वो टॉयलेट करने ही जाता था, मदर को बताता था, अब उसने क्या किया कि फ़ोन के चक्कर में कि वो गेम खेल रहा है, उसे टॉयलेट लगा हुआ है, लेकिन वो फ़ोन छोड़ के जा नहीं रहा है कि वो टॉयलेट करे, वो कपड़े में ही टॉयलेट पास कर दे रहा है. तो ऐसे बहुत सारी समस्याएँ पेरेंट्स लेकर के हम लोगों के पास आते हैं कि सर ये पहले सब कुछ करता था लेकिन नाउ इज़ नॉट ओके डूइंग ऑल दिस. और फ़ोन के बिना कोई काम ही नहीं करता, खाना भी नहीं खाता. अगर फ़ोन इसको देखने के लिए ना दो, तो ये खाना भी नहीं खाता है. तो हमें सोचना होगा कि अगर हमारा बच्चा इस लेवल पे पहुँच रहा है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? क्या बच्चा खुद से फ़ोन को इतना यूज़ करने लगा कि पेरेंट्स उसको इतना फ़ोन देने लगे? इन सब इश्यूज़ को हमें आइडेंटिफ़ाई करना होगा. इतना इतना अधिक फ़ोन क्यों? और जो स्टडी है ये बात करती है कि लगभग मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन जो है उनके पास उनका फ़ोन हो जाता है एट द एज ऑफ 7 ईयर. मैंने देखा है बहुत सारे पेरेंट्स हैं वो मल्टीपल फ़ोन यूज़ करते हैं. वो क्या करते हैं जैसे ही घर पे आए ऑफिस से वो अपना एक फ़ोन अपने बच्चे को दे देते हैं कि लो बच्चा तुम खेलो फ़ोन के साथ, मुझे डिस्टर्ब मत करो. तो इश्यूज़ को भी हमें देखना होगा कि और अगर पता चला कि कोई फ़ोन जो उन्होंने यूज़ करना बंद कर दिया तो वो क्या करते हैं एक सिम डाल करके उस बच्चे को पकड़ा देते हैं कि हाँ ठीक है जहाँ भी तुम जा रहे हो इस फ़ोन को लेकर के जाओ, इस फ़ोन को तुम कैरी कर सकते हो. तो ये सारी चीज़ें जो पेरेंटिंग के साथ इश्यूज़ आ रही हैं और ऐसा इन सारे इश्यूज़ जो मैं अभी बता रहा हूँ आप लोगों को स्टैटिस्टिक्स के साथ, इसको मैं एक-एक चीज़ को फिर आगे भी हाइलाइट करूँगा कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं, पेरेंट्स फ़ोन क्यों अपने बच्चों को इतना अधिक दे रहे हैं. उसमें जो हमारा सराउंडिंग है, जो टाइम है और ये सारी चीज़ें जो चेंज हो रहा है,
इसका भी बहुत बड़ा रोल है उन सब चीज़ों में। और सबसे इम्पोर्टेंट देखिए कि आजकल बच्चों के पास ना समय, कितना अधिक समय वो स्क्रीन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये जो स्टडी है ये अराउंड 1500 चिल्ड्रन पे की गई थी, जिनका की एज जो था 7 इयर्स टू लेकर के 16 ईयर है। और इसमें पाया गया कि एवरेज जो स्पेंड टाइम बच्चे कर रहे थे फ़ोन पे इज़ अबाउट 3 आवर्स 20 मिनट्स। हर बच्चा 3 घंटे 20 मिनट पर डे फ़ोन पे इन्वेस्ट करता है। इट्स वेरी वेरी ह्यूज लॉन्ग टाइम। ही वाज़ इंस्पायर्ड आफ्टर, ओके। एंड वो क्या करते क्या हैं बच्चे, जो 7 साल के बच्चे हैं वो एक्चुअली दे आर मोस्टली दे आर सीइंग वीडियोज़ एंड यूट्यूब्स, okay, they are most, and over 7 year and 15 years, 14 year 13 year 12 year बच्चे जो हैं वो अधिक मैसेजिंग करते हैं। और एक सर्वे ऐसा भी बताता है कि जो बच्चे हैं, जो ये टीनेजर्स हैं, ये एडल्ट लोगों से अधिक फोन पे मैसेजेस करते हैं। दे आर ट्वाइस एंड थ्राइस हायर देन द एडल्ट पीपल। ये 2-3 बार अधिक, 3 गुना अधिक मैसेजेस करते हैं अपने पीयर्स को कंपेयर टू एडल्ट एंड हेल्दी पीपल। तो हमने भी देखा कि बच्चे इतना जल्दी-जल्दी और इतना अधिक मैसेजेस क्या करते हैं, क्या-क्या करते हैं, क्यों करते हैं? क्या ये बिना, बहुत सारे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं, बच्चों के स्पेशली, एडल्ट में मैंने तो ऐसा बहुत कम केसेस, 1 या 2 केसेस देखा है, लेकिन बच्चों में बहुत अधिक केसेस मैं ऐसा देखता हूँ कि वो क्या करते हैं कि वो मैसेज अगर आ गया तो अगर वो उसको रिस्पॉन्स ना करें तो दे बिकम वेरी एंग्जियस। अगर वो उसको रिस्पॉन्स ना करें, अगर वो सो भी रहे हैं, अगर मैसेज का उनका ट्यून बज गया तो वो तुरंत 12 बजे रात को भी जग करके वो उस मैसेज को रिस्पॉन्स करने के लिए जग जाते हैं, मैसेज को रिस्पॉन्स करते हैं, जिसकी वजह से उनके स्लीप में डिस्टर्बेंसेज आता है। तो हमें इन चीज़ों को ध्यान देना होगा कि हमें बच्चों को स्क्रीन टाइम को कैसे घटाएं, क्या करें। और 57% जो ऐसे बच्चे हैं जो कि फ़ोन यूज कर रहे हैं, उन बच्चों में से 57% बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने फ़ोन को अपने साथ ही लेकर के सोते हैं, वो फ़ोन के साथ ही सोते हैं। और उसमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि इन्होंने ये एडमिट किया कि अगर फ़ोन के साथ कुछ हो जाए, तो वो क्या करेंगे वो नहीं जानते हैं। हाउ दे विल रिएक्ट आफ्टर लूजिंग देयर फ़ोन्स। तो इतना पैनिक उनके बच्चों के अंदर क्रिएट हो चुका है इस समय फ़ोन यूज़ के कारण, और हमको उन चीज़ों को समझना होगा। इससे पहले एक सर्वे हुआ था कि 1 घंटा अगर आप अपने बच्चे को, अगर आप फ़ोन यूज़ करने के लिए देते हो, तो वो बच्चे को उतना ही एडिक्ट करता है जितना कि आप 1 मिलीग्राम कोकीन अपने बच्चे को दे रहे हो। तो वो उस सर्वे के कारण बहुत सारी कंट्रीज में फ़ोन को लेकर के अवेयरनेस बढ़ाई गई, प्रोग्राम चलाए गए स्कूलों के द्वारा। और यूरोप बड़ा ही प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स उसका यूरोप और अमेरिका में मिला है कि पिछले 2 साल में 20% रिडक्शन आया है फ़ोन यूज़ करने में चिल्ड्रंस में। एंड देयर स्कूल्स में फ़ोन को बैन कर दिया है। अगर स्कूल्स में आते हैं तो फ़ोन को किसी लॉकर में रखना है, और वो किस तरह की डिवाइस यूज कर सकते हैं। कुछ बच्चों को फ़ोन देने से पहले उसमें कौन-कौन से ऐप्स जो हैं उनको लॉक कर सकते हैं, सारे ऑप्शंस को क्रिएट करके उन्होंने किया है। लेकिन भारत में ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा जो स्कूलिंग से रिलेटेड जो हमारे यहाँ समस्याएँ हो सकता है टीचर्स को ही ना पता हो, उनके पास इतनी लॉकर सुविधाएँ ना हो, उनके पास ऐसे टीचर्स ना हो जो उन चीज़ों को गाइड कर सकें कि हाँ कौन-कौन से ऐप्स को उसमें लॉक किया जा सके और सारी चीज़ें। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी तो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी को प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करें, स्टिल वी हैव टू लर्न। 44% बच्चे हमारे पास ऐसे हैं जो कहते हैं कि दे फील अनकंफर्टेबल अगर उनके फ़ोन के सिग्नल्स नहीं है, तो दे बिकम वेरी अनकंफर्टेबल, दे बिकम वेरी एजिटेटेड, दे बिकम वेरी ओके दैट सो वेरी एजिटेशन इन देयर बिहेवियर्स कि अरे यार सिग्नल ही नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें? ऐसा लगता है कि वो पूरी दुनिया से कट चुके हैं, उनके सारे ऑप्शन ही समाप्त हो चुके हैं अगर उनका फ़ोन अगर वो हो चुका है। और 42% ऐसे बच्चे हैं कि वो कंस्टेंटली वरी हैं कि अबाउट कि उनके फ़ोन जो है ना डिस्चार्ज ना हो जाए। अरे मेरा फ़ोन डिस्चार्ज ना हो जाए। तो वो बार-बार फ़ोन को चार्ज में लगा के रखते हैं, फुल चार्ज करके रखते हैं। वो
चार्जिंग पोर्टेबल चार्जर साथ में लेके चलते हैं और सारी चीजें करते हैं। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट सर्वे हुआ था, इट्स वेरी ओल्ड सर्वे कंडक्टेड इन 2012, और इसमें आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी के मामले में जापान हमसे कितना आगे है, लेकिन यूज ऑफ फोन इन चिल्ड्रेन जो था, अब जो इंडिया में सर्वे किया गया था उसमें 1200 के करीब बच्चों को लिया गया था, और बच्चों का जो मिनिमम एज था वो 10 साल था। लेकिन 10 साल में भी पाया गया कि हमारे यहाँ के 10 साल के एज के बच्चे जो हैं वो लगभग 40% बच्चे जो हैं वो फ़ोन को यूज़ करते हैं। जापान में वहीं पे केवल 20% बच्चे जो हैं वो फ़ोन को यूज़ करते हैं। और जैसे-जैसे वो एडल्ट होते हैं, आप देखेंगे कि इक्वली जैसे-जैसे एडल्ट हो रहे हैं, 18 साल के हो रहे हैं, सभी लगभग, इंडिया उसमें कम है लेकिन और सारी कंट्रीज आस-पास ही हैं। तो हम देखेंगे कि इंडिया में बच्चों के फ़ोन यूज़ बहुत अधिक है, सीधे 20% का इंक्रीमेंट है, जबकि जो जापान में टेक्नोलॉजी बहुत अधिक है, वहाँ सभी पूरे पॉपुलेशन के पास फ़ोन है। उन सब के बावजूद उनके यहाँ बच्चों के यहाँ जो फ़ोन यूज़ करने का जो हैबिट है, जो कल्चर है, वो बड़ा ही प्रिसाइज़ली दे यूज़। बट हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हम उतना प्रिसाइज़ली नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे बहुत अधिक हमारे में फ़ोन कर रहे हैं। इन सब के बाद हम लोग अगर बात करें कि हाँ ठीक है, बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, बच्चा फ़ोन क्यों यूज़ कर रहा है? हमें किस तरह की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि हाँ, बच्चा जो है वो फ़ोन को कम यूज़ करे? पेरेंट्स क्या कर सकते हैं, या एक क्लिनिशियन क्या कर सकता है? पेरेंट्स को किस तरीके से एडवाइस कर सकता है? सबसे पहले जो हमें जो बात करनी चाहिए, पेरेंट्स से बात करनी चाहिए कि बच्चे को आउटडोर गेम्स के लिए हैबिट डालें, रेदर देन कि उसको हम फ़ोन और स्क्रीन टाइम पे इन्वॉल्व करें। जो सबसे बड़ा कारण मैंने पाया, और बहुत सारी स्टडीज़ इस बारे में बात करती हैं कि जो कि बच्चों में ये फ़ोन यूज़ क्यों बढ़ रहा है। तो उसके लिए लोगों ने डेवलप ये एक फॉर्मूला डेवलप किया जिसको बोलते हैं BAS। तो बी स्टैंड फॉर बोर्डिंग, कि बोर्डिंग, जब बच्चा बोर होता है ना तो वो पेरेंट्स से कहता है मम्मा मैं बोर हो रहा हूँ, पापा मैं बोर हो रहा हूँ। तो पेरेंट्स को कुछ समझ में नहीं आता, वो तुरंत क्या करते हैं ना, टीवी ऑन कर देते हैं, या कहते हैं कि ये लो ये फ़ोन ले लो और यू स्टार्ट प्लेइंग विथ, ओके, start okay seeing video, yeah, start playing some video games and all. This boredom in children is very important issue. हर बच्चा बोर होता है। क्यों बोर होता है? क्योंकि बच्चा जो होता है ना वो क्रिएटिव होता है। उसके ब्रेन को हमेशा ना नई-नई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। 3 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, वो एक जगह पे हमारे आपकी तरह बैठ नहीं सकता। वो बहुत जल्दी-जल्दी बोर होगा। तो हमें उस बोरिंग को, बच्चे को दूर करने के लिए उसको स्क्रीन के पास नहीं ले जाना है। उसको स्क्रीन नहीं दे देना है कि लो आप जब बच्चा बोर हो रहा है ना तो बोरिंग को दूर करने के लिए क्या करो कि आप उसे मोबाइल फ़ोन दे दो फिर देखने के लिए। आप उसको स्क्रीन में टाइम इन्वेस्ट करने के लिए दे दो। फिर माँ क्या करती है, कोई दूसरा काम करने लगी। बच्चा लगातार 1-2 घंटे कुछ भी देखे जा रहा है, ना पेरेंट्स अवेयर हैं, ना बच्चा अवेयर है, because they don't, it's a child, 3 and 4 year child, he's just scrolling and seeing some videos and all, and is impacting his development of his brain. Uh, ऐसा पाया गया है कि जो बच्चे 3 से 4 घंटे जो स्क्रीन पे, 7 साल से कम बच्चे हैं और 3 से 4 घंटे लगातार अगर वो फ़ोन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों में अल्फा वेव्स का जो कम होता है, ऐसे बच्चे डिप्रेशन की तरफ जाते हैं, ऐसे बच्चों का मन और चीज़ों में नहीं लगता है, और वो दे बिकम लेज़ी आल्सो। तो अगर आप बच्चे को बहुत अधिक फ़ोन दे रहे हैं, तो बच्चे को लेज़ी भी बना रहे हो, और बच्चे को जो नॉर्मल ब्रेन वेव्स होता है, उसमें नॉर्मल ब्रेन वेव्स को भी डेवलप नहीं होने दे रहे हो। तो फिर धीरे-धीरे क्या होगा कि उसमें अगर वो नॉर्मल ब्रेन वेव्स ही आना नहीं आएँगे, तो बच्चा क्या होगा, डिप्रेस्ड होगा, बोर होगा, आउट नहीं होगा, लोगों से बात नहीं करेगा, क्योंकि उसमें एक नॉर्मल लेवल का अल्फा वेव्स ही ब्रेन में नहीं आ रहे हैं, जो कि आउटर एक्टिविटी के लिए चाहिए, जो और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए चाहिए, जो उसको एक नॉर्मल कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए चाहिए। तो पर्सनैलिटी के जो डायनामिक्स है वो भी हैम्पर्ड होते हैं। तो पेरेंट्स को सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब बच्चा बोले कि हम बोर हो रहे हैं तो उसे स्क्रीन से दूर रखें, ना कि स्क्रीन के पास लेकर के जाएँ। उसके लिए पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि बच्चे को एक जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं, उसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, कि बच्चे को दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए दे दें, बच्चे के साथ कुछ बात करें।
बच्चे के साथ बैठ करके खुद कुछ गेम प्लान करें, बच्चे के साथ बैठ करके कुछ प्लानिंग करें कि उन्हें क्या क्या करना चाहिए, उसके साथ बैठ करके कुछ गेम खेलना स्टार्ट करें। बच्चे को स्क्रीन टाइम ना दें। अगर स्क्रीन टाइम देते हैं तो फिर एज ए पेरेंट यू आर हार्मिंग योर चाइल्ड बाय योर ओन। तो ऐसा कभी भी पेरेंट्स ना करें, क्योंकि स्क्रीन टाइम मानेंगे इस 11 साल से पहले बच्चों को स्क्रीन टाइम देना ही नहीं चाहिए। बहुत ही प्रिसाइज, और वो भी स्क्रीन टाइम बच्चों को अर्न करना चाहिए। वो ऐसे नहीं कि इजीली आपको कुछ और काम करना और आप अपने बच्चे को कहीं इन्वॉल्व करना चाहते हैं, इसलिए आप अपने बच्चे को स्क्रीन टाइम दे दे रहे हैं। दूसरा क्या है कि बच्चे को हमें देखना होगा ना कि हम अल्टरनेटिव्स क्या ले सकते हैं, कि अगर वो स्क्रीन टाइम अगर अधिक इन्वेस्ट कर रहा है आपका बच्चा, या अगर उसे आप फ़ोन बार-बार दे करके उसे बिज़ी कर सकते हो, आपके पास ऐसा ऑप्शन है। तो ऐसा ना करके आप ऐसा क्या कर सकते हो, अल्टरनेट क्या ले सकते हो जिससे कि आपका बच्चा जो है कि कुछ और काम करे। उसको जैसे स्विमिंग में आप दे सकते हो, म्यूज़िक के लिए दे सकते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चे को इन्वॉल्व कर सकते हो। उसे किसी ड्राइंग क्लास में आप भेज सकते हो, उसको डांसिंग के लिए भेज सकते हो, जहाँ वो जाकर के 1-2 घंटे जाकर के कुछ ट्रेनिंग ले। जब वो बाहर से ट्रेनिंग लेकर के आएगा बच्चा, अगर उसमें वो एन्जॉय करता है, तो बच्चा घर में भी आकर के वो काम करेगा, म्यूज़िक के साथ ही विल डांस। Suppose he's going for the singing class, so he will come at home and he will sing. Or suppose he's going for skating, suppose he's going for for training for some cricket, yeah, basketball, yeah, football. He will come at home and he will practice for those things rather than he will invest his time on the phones and other screen, other gadgets, what making him to be addicted. तो हमें अल्टरनेट की तरफ सोचना चाहिए कि बच्चों को हम अल्टरनेट क्या दे सकते हैं, क्या हम उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस हम तैयार कर सकते हैं, क्या बच्चे को कुछ ऐसी एक्टिविटी पसंद है जिसमें हम उसको इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्या हम उसे ड्राइंग क्लास में भेज सकते हैं, जिससे कि उसका स्क्रीन टाइम ऑटोमेटिक घटे और उसको क्रिएटिविटी का चांस मिले, जिसके कारण वो बोर ना हो, क्योंकि एक बच्चा बोर होगा ही, क्योंकि इज वेरी क्रिएटिव एंड बोरिंग को हमेशा क्रिएटिविटी के लिए लेना चाहिए, ना कि पेरेंट्स को इसलिए लेना चाहिए कि बच्चों को हम फ़ोन दे दें। हमें देखना चाहिए कि हाँ, बोर हो रहा है तो हम उसे और क्रिएटिव काम में कैसे इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें अल्टरनेट की तरफ सोचना, अल्टरनेट जो भी हो सकता है कि हम कुछ क्लासेस शुरू कर दें, ऑल ओवर। दूसरा होता है टाइम, इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि हम उसे जो स्क्रीन टाइम दे रहे हैं, वो कितना देर तक दे रहे हैं। वो टाइम क्या 20 मिनट का होना चाहिए, 15 मिनट का होना चाहिए। फिर वो स्क्रीन टाइम ऐसा होना चाहिए, वो आपके ऑब्ज़र्वेशन में होना चाहिए कि बच्चा क्या देख रहा है, क्या नहीं देख रहा है, किस लैंग्वेज में देख रहा है, किस तरह के कंटेंट देख रहा है। और हम दूसरा क्या करना चाहिए, हमें बच्चे के साथ थोड़ा टाइम बिताना चाहिए। कि हम बैठ करके बच्चे के साथ फैमिली टाइम बिताएँ, उसको सपोर्ट करें, उसके साथ में। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट, इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि हमें टाइम कैसे स्पेंड करना चाहिए, कि देखिए बच्चा जो सीखता है ना, वो पेरेंट्स से सीखता है। तो एडल्ट द पेरेंट्स या द एडल्ट या द सीनियर पर्सन इन द फैमिली, हमें भी क्या करना चाहिए कि जब भी घर में हम आए तो फ़ोन को एक किनारे रखते हैं। हम भी क्या करते हैं कि फ़ोन को कैरी करते रहते हैं। अगर हम बेड पे सोने जा रहे हैं तो फ़ोन मेरे साथ है, हम डिनर करने जा रहे हैं तो फ़ोन हमारे साथ है। हम अगर कहीं बाहर भी अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं तो एक हाथ में हमारे फ़ोन है। तो बच्चा क्या करता है कि ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से कुछ न वो सारी चीज़ें वो सीखता है और वो भी चाहता है कि हाँ, हम भी ऐसा करें। जब डिनर करें तभी हमारे हाथ में फ़ोन हो, जब हम सोने जाएँ तब भी हमारे पास फ़ोन हो, जब हम किसी से बात कर रहे हों तब भी हमारे हाथ में फ़ोन हो। क्योंकि बच्चा जो होता है वो ऑब्जर्वेशन से सीखता है, मॉडलिंग से सीखता है, और अगर आप इस कंडीशन में बच्चे को मना करोगे कि हाँ बेटा, अगर आप फ़ोन मत यूज़ करो घर में रहते हुए, तो वो उसे समझ में नहीं आएगा। उसे लगेगा कि अरे पापा तो यूज़ करते हैं, वो तो ऐसे ही बोल रहे हैं। तो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू जब आप घर में रहते हैं तो टाइम जो है एक-दूसरे के साथ इन्वेस्ट इन्वेस्ट करें, ना कि एक-दूसरे को अपने-अपने फ़ोन के साथ इन्वेस्ट करें। बहुत सारे फैमिलीज़ में मैंने देखा है कि लोग डिनर करने के लिए आए रहते हैं, सोशल प्लेसेस पे आए रहते हैं, फॉर आउटिंग दे आर कमिंग, और फैमिली में 4 मेंबर हैं, चारों दे आर प्लेइंग विथ देयर फ़ोन्स एंड ऑर्डर कर दिया है फूड एंड ऑल 4 आर प्लेइंग विथ द फ़ोन्स। तो फिर उस आउटिंग का कोई मतलब नहीं है, उस क्वालिटी टाइम का कोई मतलब नहीं है। फिर इससे
इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत अधिक प्रॉब्लम्स आने लगी हैं आज उनके बच्चे, दे आर नॉट वेरी कम्युनिकेटिव टू अस पेरेंट्स, और वो लगता है कि हाँ उनकी पूरी लाइफ ही फोन हो गई है। सेकेंड क्या है, फोर्थ एस्पेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंटरवेंशन, सपोर्ट एंड सराउंडिंग। अगर बच्चा स्क्रीन टाइम अधिक यूज कर रहा है तो हमें उस बच्चे को कैसे सपोर्ट करना है। बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, सडनली उससे फोन ले लेते हैं कि पहले उसे खूब फोन दिया, आज उन्हें लग रहा है कि फोन की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो वो क्या करते हैं सडनली तुरंत उससे फोन स्क्रीन टाइम उसका पूरा छीन लेते हैं। उससे बहुत अधिक एग्रेसिव आउटबर्स्ट, बिहेवियरल प्रॉब्लम एंड ऑल प्लेस लेता है। मैं लास्ट ईयर पुणे की एक घटना आपको बताता हूँ। 13 साल के एक बच्चे का जो कि स्क्रीन टाइम बहुत अधिक था, उसके वजह से उसको बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रहा था, उसका स्कूलिस्टिक परफॉर्मेंस जो है वो डाउन हो रहा था। पेरेंट्स ने क्या किया, एकाएक उससे फोन छीन लिया, और केवल फोन छीन लेने के कारण वो इतना बिकम वेरी इम्पल्सिव एंड जंप फ्रॉम द 6th फ्लोर, has committed suicide and suddenly is died. तो इस सबसे तो हमें देखना चाहिए कि क्या हम इतना जो चीज़ आज वो बच्चा फ़ोन यूज़ कर रहा है, वो किसके कारण यूज़ कर रहा है, मेरे कारण यूज़ कर रहा है, तो हम उसको अब कैसे सपोर्ट करें वंस इट बिकम एडिक्टेड। तो सपोर्ट करने के लिए एक ही बार में फ़ोन ना लेने, नहीं तो हो सकता है कि बच्चा सुसाइड कमिट कर लेगा। बिहेवियर प्रॉब्लम होगा, वो कोई सामान घर का उठा के तोड़ देगा, हो सकता है कि वो आपसे गाली गलौज कर ले, वो घर से भाग करके बाहर चला जाए। तो अब उसके साथ हमें कुछ ना कुछ कंटिजेंसी मैनेजमेंट प्लान करना होगा उस बच्चे के साथ। उस बच्चे के साथ कंटिजेंसी कि हाँ तुम्हें फ़ोन मिलेगा, लेकिन आप ये टास्क पूरा कर लोगे तब आपको 20 मिनट के लिए मिलेगा। आपको ये टास्क 3-4 टास्क उसको बताइए, तो वो दिन में 3-4 टास्क पूरा कर लेता है, ठीक है तब आपको 1 घंटे के लिए हम फ़ोन देंगे। और धीरे-धीरे क्या करेंगे, उस फ़ोन आपको हम कम करेंगे और उसको वैल्यूएबल फ़ोन का कैसे वो अच्छे से यूज़ कर सकता है रेदर देन प्लेइंग गेम्स एंड ऑल। हम सभी जानते हैं अभी एक वीडियो गेम चला था ब्लू व्हेल, और अभी बहुत सारे चाइनीज़ ऐप गेम के चले थे जिसमें बच्चे बहुत अधिक टाइम स्पेंड कर रहे थे उन गेम्स को प्ले करने के लिए। और एक सर्वे में मिला है कि मोस्ट ऑफ द चाइल्ड इज यूजिंग दैट पर्टिकुलर गेम एट लेस देन 18 ईयर्स। तो हमें देखना चाहिए कि पेरेंट्स सभी बच्चों के पास उतना फ़ोन कहाँ से चला गया। वो सारे गेम ऑनलाइन है, तो कितना अधिक डेटा उनको कब कैसे अवेलेबल हो रहा है, उन चीज़ों को हमें देखना होगा। पिछले 3-4 साल में 2017 टू 2020, आफ्टर द जियो केम विद द cheaper data, the data consumption increased in India, and now we are in the first position to consuming data. And the most of the data we are investing in the seeing videos and the phone movies and all in the in okay in bike। तो हमें देखना चाहिए कि हाँ वो, और फिर उसमें भी सर्वे हुआ कि किस तरह के बच्चे और क्या है। तो देखा गया कि जो 14 साल से 18 साल के बच्चे हैं वो अपना 50% डेटा जो है वो फोन मूवीज और इन चीज़ों को देखने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पेरेंट्स को देखना होगा कि हाँ वो जो डेटा दे रहे हैं उस बच्चा उसको कैसे यूज कर रहा है। क्या ऐसा उस पर फ़ोन में रिचार्ज करें जिसमें केवल बात करने के लिए वो डेटा ना हो, या डेटा अगर उसे मिले तो वो कुछ एमबीएस में मिले जिसको भी थोड़ा बहुत यूज करने के बाद वो समाप्त हो जाए। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान नहीं दे पाएंगे तो देन इट्स बिकम ह्यूज बर्डन फॉर अस। और जब एक बार प्रॉब्लम हो जाती है तो पेरेंट्स लेके आते हैं हम लोग के पास, कहते हैं हाँ हम इसे सही कर, तो एक दिन से यू कांट चेंज। सेकंड, सपोर्ट कैसे करना चाहिए, धीरे-धीरे हमें फ़ोन लेना चाहिए, एंड देन वी हैव टू चेंज द सराउंडिंग आल्सो। ऐसा नहीं है कि केवल हम बच्चे से कहें कि आपको फ़ोन नहीं यूज़ करना है। पेरेंट्स से भी बोले कि हाँ, आपको भी घर में रहते हुए फ़ोन को नहीं यूज़ करना है। फ़ोन को जाकर के एक जगह पे रख देना है। कॉल और मैसेज करने का या मैसेज को रिस्पॉन्स करने का एक टाइम होगा कि हम इतने बजे से इतने बजे के बीच में ही फ़ोन कॉल्स को रिस्पॉन्स करेंगे, अगर इमरजेंसी नहीं है तो। ठीक है? सप्ताह में 1 दिन हम लोग ऐसा बनाएँ जहाँ पर कि 2-4 घंटे के लिए ही सही कोई भी घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं यूज़ करे। संडे का 4 घंटा हम डिसाइड करें कि हम एक सराउंडिंग तैयार करें जहाँ की एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो फ़ोन को ना यूज़ करने का। आफ्टर वन्स डेवलपिंग कि हम 4 घंटे फ़ोन को, फैमिली का कोई भी मेंबर फ़ोन नहीं यूज़ करेगा। हम ऐसा कर सकते हैं कि हाँ कि हम आज हम दिन भर पूरा फ़ोन ही नहीं यूज़ करेंगे, कोई भी फैमिली का मेंबर जो वो फ़ोन नहीं यूज़ करेगा। अगर सप्ताह में एक ऐसा दिन भी अगर हम लेके चलते हैं तो जो बच्चा एडिक्टेड हो चुका है उसको एक हैबिट, एक आदत आएगी
कि हाँ केवल 12 घंटा ही है, 4 घंटा ही है जहाँ पर कि मुझे फ़ोन नहीं मिलेगा, तो उसको एक धीरे-धीरे उसको ना उस फ़ोन को न रखने का जो एक टेम्परामेंट, एक जो बिहेवियर उसमें डेवलप होना चाहिए कि फ़ोन को न यूज़ करने से जो प्रॉब्लम हो रही है, उसको वो कैसे ओवरकम कर रहा है, खुद से कैसे ओवरकम कर रहा है, ये जानते हुए कि हाँ 4 घंटे बाद उसे जो है कि 4 घंटे बाद उसे फ़ोन मिल जाएगा। तो फ़ोन के साथ जीना और फ़ोन के बिना जीने का आदत फिर धीरे-धीरे बच्चों में डालना। तो पेरेंटिंग इज़ बिकम वेरी इम्पोर्टेंट हाउ टू मेज़र। सेकंड, हमें फ़ोन को बच्चों से 8 बजे के बाद ले लेना चाहिए कि नहीं, रात में आपको स्क्रीन टाइम नहीं मिलेगा। आपको रात में एकदम नहीं देखना है और वो फ़ोन किसके पास होना चाहिए? कहीं घर में एक जगह होना चाहिए, जहाँ से उसका और कुछ साइलेंट होना चाहिए कि अगर कोई मैसेज आए या कुछ आए तो उसे पता ना चले बच्चे को कि हाँ, जिससे कि वो रिस्पॉन्स करने के लिए तैयार हो। और जिससे एक क्या करना चाहिए, हमें घर में भी एक कंटीजेंसी मैनेजमेंट करना चाहिए हम सभी लोगों को कि हम 8 बजे के बाद फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे, फ़ोन घर में एक जगह पर रखा जाएगा, जिससे कि बिना फ़ोन के रहने की भी हमें आदत पड़े। हम सभी लोग बहुत अधिक फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, तो बच्चे क्यों ना करें? अगर बगल में बेड पे लेकर के हम सो रहे हैं, तो बच्चा भी डिमांड करेगा कि हाँ ठीक है, मुझे भी फ़ोन दीजिए, मैं भी फ़ोन को देखूँगा, मैं भी फ़ोन के साथ स्क्रीन टाइम इन्वेस्ट करूँगा। और दूसरा, जब फैमिली में 4 लोग साथ बैठे हों तो वहाँ पे हमें बहुत ही स्ट्रांगली अपोज़ करना चाहिए कि नहीं, कोई भी फ़ोन हाथ में नहीं लेगा। अगर आपके हाथ में फ़ोन है तो आप उसको जेब में रखिए, हम सभी बैठ कर के बात करेंगे। ऐसा ना हो कि बीच-बीच में हम बात कर रहे हैं, बीच-बीच में हम फ़ोन्स कॉल्स को ले रहे हैं, बीच में ही हम मैसेज को रिस्पॉन्स कर रहे हैं। स्टिल वी आर ओके, तो जो एक फैमिली एनवायरनमेंट क्रिएट होना चाहिए, जो एक कम्युनिकेशन स्टाइल डेवलप होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो इन चीज़ों के लिए जो है हमें एक हेल्दी लाइफ स्टाइल डेवलप करना चाहिए और ये शुरू कहाँ से होगा कि पेरेंट्स खुद उस हेल्दी लाइफ स्टाइल को जीना शुरू करें। थैंक यू श्वेता। Thank you so much, Satya, for sharing your valuable inputs. And definitely, जैसा कि आपने बताया, स्पेशली जो जापान का एग्जाम्पल है कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी में सबसे आगे होते हुए भी उनको ये पता है कि टेक्नोलॉजी हमने बनाई है, हमारे लिए बनाई है, ना कि हम टेक्नोलॉजी के लिए बने हैं। तो इंडिया में जो मैंने ऑब्जर्व किया है, जो आपने भी बताया कि कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी पे इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं कि हम पूरी तरीके से हमारी हर छोटी छोटी चीज के लिए, चाहे बच्चों को एंगेज करने वाली बात हो, चाहे बच्चों को अगर रो रहा है तो आप फोन दे रहे हैं, काम कराना है तो आप फोन दे रहे हैं, हर चीज के लिए आप सिर्फ फोन पे डिपेंड कर रहे हैं। और उसमें सबसे बड़ा फैक्टर जो कि स्कूल्स हैं, जबकि स्कूल्स को ये सिखाना चाहिए कि हाँ आपको फोन से दूर रहना है, स्क्रीन टाइम कम करना है, बट उल्टा आज के केस में ये है कि टीचर्स ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं जहाँ पे होमवर्क और असाइनमेंट साइंस होते हैं, और बच्चे उसके बिना, उनके पास में एक सीधा सीधा एक्सक्यूज होता है। जब भी हम मोबाइल एडिक्शन के केसेस लेते हैं तो उनका कहना होता है कि मैम हम कैसे काम करेंगे अगर हमारे पास में फोन नहीं होगा तो। और टीचर्स पेरेंट्स से कम्युनिकेट करने के लिए, स्टूडेंट्स से कम्युनिकेट करने के लिए भी व्हाट्सएप ग्रुप यूज कर रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से, मतलब एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम ही पूरा बिगड़ चुका है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमें हमारी सोसाइटी को दोबारा से रिफ्रेम करना जरूरी है। जब एक टाइम था बिना मोबाइल के, बिना टेक्नोलॉजी के भी हमारी एजुकेशन भी हुई, हम लोगों ने शायद ज्यादा अच्छी वैल्यूज देखी अपनी लाइफ में और ज्यादा अच्छे से आगे प्रोसीड किया। उस समय पे एक आदत होती थी, आज की डेट में बच्चे नोट्स बनाते हैं गूगल देख के, गूगल हो गया, विकिपीडिया हो गया, लिंक्स हो गया, उनको बुक्स का मतलब नहीं पता कि रेफरेंस बुक्स क्या होती हैं, लाइब्रेरी क्या होती है, व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट, जर्नल्स क्या होते हैं, ये सब कुछ खत्म हो चुका है। तो डेफिनेटली that was very important topic, and thank you so much once again for having this fruitful discussion, especially for this break the silence, क्योंकि बात करना जरूरी है। तो इस मेंटल हेल्थ डे पे इसलिए हम पूरे हफ्ते आपके लिए कुछ ना कुछ वर्कशॉप्स लेते हुए आते रहेंगे कि हम किस तरीके से बात करें और किस तरीके से चीजों को सुधार सकें और कितने फ्रूटफुल वे में, कितने हेल्दियर वे में हम एक लाइफस्टाइल को आगे बढ़ा सकें। तो पार्टिसिपेंट्स, हाउस इज ओपन फॉर द डिस्कशन। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं। हेलो। Hello, good evening, Shweta ma'am. This is Rohan Pandey. हाय रोहन। How are you, ma'am? आई एम गुड, हाउ आर यू? थैंक यू। I'm too good, ma'am. मेरा एक क्वेश्चन है मैम। मुझसे या जैसे डॉक्टर मैम सत्या से? आप किससे पूछना चाहेंगे? हेलो, आप किससे पूछना चाहेंगे, मुझसे या डॉक्टर सत्या से?
जी मैं डॉक्टर सत्या सर से पूछना चाहूंगा। हाँ हाँ, पूछिए प्लीज। मैम क्वेश्चन मेरा ये है सर, जो आपने मोबाइल एडिक्शन के बारे में जो भी डिटेल्स दी, इंफॉर्मेशन दी सर, अगर हम एक फैमिली में होते हैं सो वी कैन डिसाइड टू गेट द चाइल्ड इन्वॉल्व इन आर, जो भी हमारा एक रूटीन होता है कि हाँ बच्चे को अगर एक बोल दिया गया है कि अभी इसके बाद आपको फोन नहीं यूज करना है तो नहीं यूज करना है, बट व्हाट शुड बी डन व्हेन वी हैव अ डिसेबल्ड चाइल्ड लाइक न्यूरो डिसेबिलिटी, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से जो बच्चे जा रहे हैं थ्रू आउट चल रहा है उनका थेरेपी ट्रीटमेंट, वो फैमिली में है और फैमिली पर्सन्स उनके सामने फोन यूज करते हैं, तो आप एक मतलब नॉर्मल बच्चे को अच्छे से गाइड करके बता के समझा के उसको थोड़ा टाइम लेकर उसको एक सजेस्ट करके समझा सकते हैं, बट जो एक डिसेबल्ड चाइल्ड है उसके साथ कैसे आप ट्रीट कर सकते हैं सर? एक्चुअली क्या, जब डिसेबल्ड चाइल्ड है ना, ही विल लर्न फ्रॉम ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है ना, उसके सामने अगर हमें ऐसा लग रहा है कि फ़ोन के कारण उसमें प्रॉब्लम आ रही है या ये वो ओवर डिमांड कर रहा है फ़ोन को, तो हमें क्या करना है, उसके सामने अपना स्क्रीन टाइम भी घटाना है कि हम उसके सामने फ़ोन ना लेकर के जाएँ, जिससे कि वो फ़ोन के लिए डिमांड कर सके। पहला तो ये है। दूसरा ये है कि हम फ़ोन की जगह पर ना कुछ अल्टरनेटिव उसके साथ करें कि हम उसको कुछ गेम्स में इन्वॉल्व करें, कुछ ड्राइंग में इन्वॉल्व करें उसको, कुछ बनाने में इन्वॉल्व करें, पेपर पेंसिल टास्क में उसको इन्वॉल्व करें, जिससे कि उसको एन्जॉय मिले। दूसरा, अगर छोटे-छोटे टास्क पे ना उसको रीइन्फोर्स करें। जब भी वो थोड़ा-सा भी अच्छा करता है ना, तो हम क्या करें ना, क्लैप करें। फ़ोन जब भी लेता है तब हम क्या करें, ये तो बहुत गंदा बात है, फ़ोन नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक है? लेकिन जब भी वो पेपर पेंसिल लेकर के कुछ करता है ना, तो हम क्लैप करें, उसके लिए चॉकलेट ला कर के दें। उसका जो डिज़ायरेबल बिहेवियर है उसे रीइन्फोर्स करें, और जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है उसको हम क्या करें कि उसको नेगेटिव रीइन्फोर्स तो ना करें, लेकिन हम उसको ध्यान ना दें, उसको इग्नोर करें। तो धीरे-धीरे आप देखोगे कि जो डिज़ायरेबल बिहेवियर आप चाहते हो उस बच्चे से कि वो डिसेबल्ड बच्चा जो है फ़ोन कम यूज़ करे और अपना टाइम जो है और चीज़ों में इन्वॉल्व करे, जैसे पेपर पेंसिल टास्क पे इन्वॉल्व करे या कुछ अपने हम्म। गेमिंग में, जैसे जो फिजिकल गेमिंग होती है उनमें इन्वॉल्व करें। तो रीइन्फोर्स के द्वारा हम कर सकते हैं, उसको हम उतना समझा तो नहीं सकते हैं, लेकिन हम जो है ना रीइन्फोर्स करके डिज़ायरेबल बिहेवियर को उसमें डिज़ायरेबल बिहेवियर ला सकते हैं। सेम सर मैं विद द आपको कुछ नॉर्मल बच्चों चिल्ड्रन का ऑल्सो। सेम सर विद द सर मैं नॉर्मल आपको चिल्ड्रन ऑल्सो। बोलिए। ओके सर, सर मैं आपको कुछ बच्चों का एग्जांपल देता हूँ, जैसे आई हैव हैड एन एक्सपीरियंस विद द dyslexia child. हुँ, हुँ। He was given therapies at home, in families and outside the centers, child development centers, but जो उसके घर में जो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट था कि मॉम एंड डैड वाज अ डॉक्टर और हुँ, बच्चा जो है वो मेड के साथ घर में एंटरटेन करता है, सो he has a tablet, he has an iPad, so he हुँ, all the time uses it because does not have any member to talk like that. हुँ, तो हुँ। सर उस केस में भी कैसे डील किया जा सकता है, बिकॉज इन अनदर केसेस सर, अगर आप ऑटिज्म की बात करते हैं, सो ऑटिज्म में कई बार होता है कि हम केसेस में देखते हैं चाइल्ड इज वेरी मच ऑब्सेस्ड विद द मोबाइल फोन्स, सो हाउ ही और शी कैन बी मैनेज with such other examples what you have given me. हाँ, बिहेवियरल जो मैंने दिया है ये आपको ऑटिज़्म में भी करना पड़ेगा। दूसरा आपने जो दिया ना कि पेरेंट्स डॉक्टर हैं, बच्चे हैं सम डिस्लेक्सिया इश्यू एंड ऑल, तो उसको Yes. क्या करना है ना, आउटडोर एक्टिविटीज़ में उस बच्चे को हम इन्वॉल्व कर सकते हैं, पैरेंटल काउंसलिंग कर सकते हैं कि उस बच्चे को के साथ वो क्वालिटी टाइम कैसे इन्वेस्ट करें। उसका जो स्क्रीन टाइम है उसको कम करने के लिए उसके फ़ोन्स और उन चीज़ों को वो कैरी ना करे। जब घर से बाहर होता है ना तो फ़ोन्स और जो टैबलेट्स हैं उसको बच्चा कैरी ना करे। घर में होता है तो पर्टिकुलर एक स्पेस हो जाए जहाँ पर जा कर के ही वो टैबलेट और फ़ोन को यूज़ कर सकता है, हर जगह ले करके कैरी करके नहीं कर सकता है। तो पैरेंटल काउंसलिंग कर सकते हैं, वो डिफरेंट सिचुएशंस के हिसाब से आप प्लान कर सकते हो। और पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उन पेरेंट्स को भी आपको थेरेपी में इन्वॉल्व करना होगा। अगर आप केवल बच्चे के साथ काम करेंगे तो आप सक्सेस नहीं होंगे। आपको उन पेरेंट्स को भी अवेयर करना होगा कि इसके कारण इसको क्या-क्या दिक्कत हो रही है। तो उन चीज़ों को ध्यान देना होगा आपको, पेरेंट्स को भी इन्वॉल्व करना कि पेरेंट्स क्या हेल्प कर सकते हैं आपकी, कि वो कैसे रिड्यूस करने में हेल्प कर सकते हैं। वो बिज़ी तो हैं, लेकिन क्या बच्चे को कहीं और इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनके पास अच्छा खासा पैसा है उनके पास, तो वो पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं बच्चे को इन्वॉल्व करने के लिए। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि टैबलेट और फ़ोन में ही इन्वेस्ट करके उसको इन्वॉल्व कर सकें।
तो आउटडोर एक्टिविटीज जैसे मैंने बोला कि उसको म्यूजिक क्लास में भेज देना, उसको डांसिंग क्लास के लिए भेज देना, अगर उसका कुछ स्केटिंग अगर वो सीखना चाहता है, उसके लिए उस इंटरेस्टिंग चीज है तो उसके लिए उसको भेज देना, कुछ भी आप उससे करवा सकते हो। ऑलराइट सर। सर व्हाट अबाउट न्यूक्लियर फैमिलीज जिसमें फैमिली मेंबर्स कम होते हैं, द मदर हैव अ चाइल्ड अलोन एट होम एंड मदर हैज फ्यू वर्क्स इन किचन एंड शी, बच्चे छोटे होते हैं तो क्या होता है कि चलो बेटा तुम फोन ले लो, तब तक मैं अभी वर्कआउट अपना फिनिश करके आती हूँ। उसमें क्या होता है 2-3-4 घंटे द चाइल्ड यूजेस टैबलेट्स एंड फोन्स, तो उसकी एक सर एक हैबिट पड़ जाती है कि हाँ मदर को अगर बिजी करवाना है बच्चे को, बिकॉज शी इज अलोन एंड शी नीड्स टू बी बिजी, so the mother or the father needs to give an iPhone or phone कि लो बेटा तुम 2-4 घंटे के लिए बिजी हो जाओ, तब तक मैं अपना काम फ्री हो जाता हूँ। सर हाँ इससे रोहन, भी कई बार होता है कि इश्यूज आने लगते हैं, तो सर इस केस में सर क्या हो सकता है आगे? पेरेंटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे अब मैं ऐड करना चाहूंगी अगर आप परमिशन दे तो। बेसिकली मैं यहाँ पे वही क्वेश्चन जो मैंने अभी बीच में ऐड किया था कि हम पहले भी हमारी एक सोसाइटी थी, फैमिलीज हमारी भी थी और न्यूक्लियर फैमिलीज भी रही थी। पहले भी मदर अकेले काम करती थी, घर भी संभालती थी, पजल्स होते थे और भी गेम्स होते थे जो बच्चों को दिए जाते थे, जो बेसिक गेम्स होते थे। बट कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी से, यहाँ पे पेरेंट्स की काउंसलिंग, हम सबकी काउंसलिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी के अंडर में हम एडिक्टेड हो चुके हैं, हम डिपेंडेंट हो चुके हैं और इसलिए हम एक पर्सपेक्टिव लेके ही नहीं चल रहे हैं कि व्हाट नेक्स्ट। अगर फोन नहीं है, फोन चलना बंद हो गया, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ था जब घर से निकलना बंद हो गया, तो हमने वेज निकाले ना कि हम क्या क्या कर सकते थे। घर पे बैठ के हमने पुराने गेम्स निकाले, हमने अंताक्षरी भी खेली, हमने लूडो भी खेला, हमने ऐसी बहुत सी चीजें की जो हम हमारे बचपन में करते थे। वही सारी चीजें उन न्यूक्लियर फैमिलीज में भी मदर बच्चों को इंगेज कर सकती हैं, चाहे वो पजल गेम्स हो, चाहे नॉर्मल जब हम अटेंशन कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं कि आप दालें मिला के उनको दे दीजिए, आप अलग अलग कलर के बटन्स मिला के उनको दे दीजिए, अलग अलग ब्लॉक्स मिला के दे दीजिए, जिससे बच्चे की कॉग्निटिव स्किल्स भी स्ट्रांग होंगी, बच्चा एंगेज भी रहेगा और आप अपना काम भी कर सकते हैं। So we need to think about that advanced parenting and old parenting style। वो बहुत कहीं ना कहीं साइंटिफिकली बहुत सही थी और हम लोगों ने विद द टाइम उसको भूलना शुरू कर दिया है। तो बच्चों से ज्यादा फोकस पेरेंटल काउंसलिंग की ज्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। और पेरेंट्स को स्पेशली स्कूल्स की साइड से या जिस भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, जैसे वी ऑल आर वर्किंग विद स्पेशल चाइल्ड, तो हम बच्चों से पहले अगर पेरेंट्स के लिए मैनेजमेंट प्रोग्राम करें और साइको एजुकेशन प्रोग्राम करें तो आई थिंक हमारी ट्रेनिंग ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगी। आई होप रोहित आपको आंसर मिल गया होगा। यस मैम, थैंक यू सत्या सर, थैंक यू श्वेता मैम। या एनी अदर क्वेश्चन? एक क्वेश्चन मेरे पास चैट बॉक्स में आया है। Tanisha, you can ask directly. You have a sister, she is around 21. She is addicted with her mobile and used to watch a lot of web series and movie rather than interacting with friends and family. So how we can help her to solve this social and behavioral problem? यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये जानना पड़ेगा कि अगर वो ये चीज कर रही है या अगर बिहेवियर है तनिषा, तो कहीं ऐसा तो नहीं उनके सोशल रिलेशनशिप में कुछ इशू है, या उनको फ्रेंड्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, क्या उनको ट्रस्ट इश्यूज हैं, या कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ है। कहीं ना कहीं वो अकेलापन ज्यादा है, इसलिए वो दोस्तों या रिलेशनशिप से ज्यादा इस तरीके की वेब सीरीज पे हम लोग कहीं ना कहीं वहां पे अपनी एक दुनिया बनाने की कोशिश करते हैं, वहां पे रिलेट होने की कोशिश करते हैं। तो आपको पहले उनसे एक पर्सनल काउंसलिंग के लिए आप उनको रेफर कर सकते हो या आप खुद भी बात कर सकते हो कि क्या कोई ऐसी प्रॉब्लम वो फेस कर रही है इंटरपर्सनली और इसलिए वो कनेक्ट नहीं कर पा रही है लोगों से और इसलिए वहां ज्यादा कनेक्ट कर पा रही है। अगर उसके बाद भी ये नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए फिर आप प्रोफेशनल काउंसलिंग के लिए उनको रेफर कर सकते हैं। एम आई राइट सत्या, या आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? हाँ सही है। दो चीजें हैं टेक्नोलॉजी के साथ एडल्ट में। वंस दे स्टार्ट यूजिंग व्हेन दे आर इन डिप्रेशन, तो हमें देखना होगा क्या उनमें माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन तो नहीं है जिसके वजह से वो अधिक यूज करना शुरू कर दी। दूसरा ये होता है कि यूज करने के कारण लोगों में डिप्रेशन आता है, वाइस वर्सा कोरिलेशन पाया गया है रिसर्च में। तो हमें देखना होगा कि वो डिप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विद एडल्ट, क्योंकि 20-21 साल की बता रही है तो हमें देखना होगा कि क्या वो डिप्रेशन माइल्ड टू मॉडरेट नहीं है जो वो कैरी कर रही है, जिसके कारण सोशल चीजों से, सोशल कम्युनिकेशन से वो भाग करके वो इंडिविजुअल गैजेट्स और फोन यूज कर रही है। तो उन चीजों को देखते हुए प्रॉपर में देखना, पहले उसका कॉग्निशन ही हमें देखना होगा उस इंडिविजुअल का कि वो किस लेवल पे और क्यों इतना अधिक फोन यूज कर रहा है। बिकॉज इज एडल्ट इज नोइंग कि हाउ मच आई एम यूजिंग एंड ऑल इज नॉट किड कि वो
टोटली पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो फिर हमें दूसरा एक एंगल लेकर के चलना होगा, साइकाट्रिस्ट के साथ लेके चलना होगा। मैं ये बोल रहा हूँ एडल्ट वाले में रहता ना कि वो डिप्रेशन का इशू देखना होगा, क्योंकि डिप्रेशन वाइस वर्सा पाएगा। जो लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं वो लोग गजट्स का यूज बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। दूसरा क्या होता है कि गजट्स यूज के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो एडल्ट वाले कंडीशन में थोड़ा साइकाट्रिक कोमॉर्बिडिटी को देखते हुए हमें इंटरवेंशन प्लान करना चाहिए। और अगर बहुत अधिक वो हो रहा है पहले से, एक तो दूसरा डिटेल हिस्ट्री की वो पहले से कैसी थी, या पहले बहुत अधिक आउटर थी, नाउ इज बिकमिंग, व्हाई इज हैपनिंग नाउ बिकॉज इज 21 ईयर। तो क्या उसका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज तो नहीं आ रहा है? ये ऐसा समय है जहाँ की बहुत सारे बच्चे इंटरपर्सनल इशू, रिलेशनशिप के इश्यूज के कारण डिप्रेशन में जा रहे होते हैं और दे चेंज देयर लाइफ स्टाइल इन सम डिफरेंट वे। तो हमें थोड़ा साइकाट्रिक कोमॉर्बिडिटी और इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इश्यूज को देखते हुए उसका इंटरवेंशन के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। I think she got the answer. अगर आपको आगे भी कोई हेल्प चाहिए तो यू कैन पोस्ट योर क्वेरीज या फीडबैक, आपको आगे के लिए क्या कैसे आप चाहेंगी। वैसे आप या आई हैव नेटवर्क इशू बट आई गेट द सॉल्यूशन। ओके तनिषा, अगर आगे आपको कुछ भी क्वेरी लगता है यू कैन पोस्ट एनी मैसेज, एनी क्वेरी टू आवर पेज डायरेक्टली। एनी अदर? I think Satya covered all the aspects very beautifully and explained very things, very management things. मेरे लिए आई थिंक सभी पेरेंट्स के लिए समझना बहुत आसान रहा, बहुत मतलब क्लियर लैंग्वेज में, बहुत लेमन लैंग्वेज में, जो कि हमेशा हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिटी मेंटल हेल्थ रीच के लिए। तो उसके लिए आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सेशन को पूरी तरीके से निभाया। थैंक यू सो मच सत्या वंस अगेन। अच्छा, हमारे साथ में मुजू सर हैं जम्मू से। थैंक यू सो मच सर, वेरी गुड इवनिंग। थैंक यू इट्स अ वेरी गुड सेशन। सर कैसे हैं आप? जी बस बिल्कुल ठीक। एक्चुअली आई वाज सेइंग कि देयर आर प्रॉब्लम चिल्ड्रन, देयर आर प्रॉब्लम पेरेंट्स। हाँ, पेरेंटल काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये कह रहे तो हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन के लिए इफ दे आर गिविंग हिम द मोबाइल एज अ टॉय, व्हाट्स द फन ऑफ दैट? गिव सम अदर टॉयज देन। If they use it as a toy, give some other toy. Why only this thing? Painting, other things they can do with that thing, or playing up these games, etc. So the question is that actually parents are more responsible than the children. Yeah, same. Because they yield, they surrender to our whims because parents want to be free. They don't want to be busy with those people. So all like, chalo beche khelo. So naturally, parents counseling is more important. Because now it has become very important for education purpose. पहले आप कहते थे स्कूल में मोबाइल मत लाओ, आप कहते हैं मोबाइल लाना ही है. So what's become mode of education? Therefore we can't discard it completely, but we have to see that we use it rationally. और जहाँ जरूरत है वहाँ इस्तेमाल करेंगे under guidance. लेकिन parents को कहना है कि how they will operate upon it and not be rude or rough or careless with the children, but methodically they have to be trained properly how to divert the child. So that they don't insist only upon the mobile or something like that. That would be suggestion for my side. Thank you very much. Very good session. Please keep thank it you up. sir, Keep it up. thank you so much sir, thank you. Anyone else? Acha, in the end of the session I would like to say sorry to everyone because I know there is so much interruption from my end. My pet was not well, so I have to come for डॉक्टर विजिट, इसलिए वो सेम टाइम पे क्लैश हो गया। सो आई एम सो सॉरी फॉर सो मच डिस्टर्बेंस फ्रॉम माय एंड, बट आई होप आपको सत्या की साइड से सेशन बिल्कुल क्लियर रहा होगा। हमारी तरफ से जो छोटे मोटे ग्लिच हुए इस कारण से, क्योंकि मैं बाहर थी, उसके लिए मैं आप सभी से माफी चाहती हूँ। प्लीज बी कनेक्टेड विथ अस। कल हम कोई बात नहीं मैडम, कोई बात नहीं। कोई नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है।